All right, in the last class we have learnt about Kirchhoff's junction rule and the other one, that is KCL and KVL. Both of them we have learnt. We have learnt how to apply KVL, Kirchhoff's voltage law. Yeah. Now we are going to study something called as Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. So you can mark this to be the most important derivation of your entire chapter since it has been asked n number of times in your PU syllabus for a 5 marker. Okay, so there are a few more things with regards to KCL and KVL, meaning what is the law of principle used in KCL, what is the principle used in KVL. KCL, the principle used was law of conservation of charge. KVL, the thing was law of conservation of energy. Okay, so now let us move on to Wheatstone bridge. So what is this Wheatstone bridge? It is basically a setup. It is a setup of 4 resistors, okay, something like this and like this. Done. There will be 4 resistors, let us say P, Q, R and S. Please be sure with the order P, Q, R, S. You will not go P, Q, R and S, you will go R and S. R to the left, S to the right. Why, you will understand the order. Why am I stressing on the order as you move forward. ठीक है, तो ये आपका एक नोड है, ये भी एक नोड है, यहाँ पर एक नोड है और यहाँ पर एक नोड है. ठीक है, let us give them names. It is A, B, C and D. Done. So you have 4 resistors in a particular arrangement P, Q, R, S, and they are connected between the nodes A, B, C and D. ठीक है, between A and C I am connecting a battery. Between A and C I am connecting a battery, and obviously you can put a plug key if you want. I am connecting a battery between A and C. Let us say battery is having EMF E, या V भी आप लिख सकते हो, V लिखो या फिर EMF E लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे. ठीक है, सो A and C is connecting between a battery. Potential is applied to points A and C, nodes A and C, and between B and D, अगर B and D के बीच में कुछ ना होता तो फिर PQ सीरीज होते, RS सीरीज होते, PQ और RS एक दूसरे से पैरेलल होते. I hope you are understanding this. If you don't have anything in between, P and Q are in series, R and S are in series, these two are in series, these two are in series with respect to each other. P समझो 5 है, ये भी 5 है, तो 5 + 5 10 हो जाता. यहाँ पर से 10 and 10 + 10 20 हो जाता. सो 10 and 20 पैरेलल हो जाता, क्योंकि वो दोनों कॉमन पॉइंट्स A and C के बीच में है. बट द अरेंजमेंट हैज वन थिंग एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड अ गैल्वेनोमीटर. दैट इज कॉल्ड अ गैल्वेनोमीटर G. ठीक है, तो मैं स्लोली समझाता हूँ कि क्या चीज़ है वो. डन. सो दिस इज योर बेसिक सेटअप इन Wheatstone bridge. So this setup itself is called a Wheatstone bridge, where 4 resistors are connected in a rectangular shape between 4 nodes, and between 2 resistors, the 2 nodes are connected to a battery, the other 2 nodes are connected to a galvanometer. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले let me tell you what do you mean by a galvanometer. Galvanometer एक करंट डिटेक्शन डिवाइस है, यानी कोई भी समझो कि अगर से देयर इज अ रजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक है, इफ़ आई हैव टू फाइंड कि क्या इसमें करंट जा रहा है या नहीं, तो फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इसके आगे या इसके पीछे एक गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो क्या होगा. गैल्वेनोमीटर के अंदर एक पॉइंटर होता है, जो पॉइंटर मूव करता है एज एंड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट. तो जैसे ही करंट फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर मूव करेगा.
so you will come to know that there is current flowing. So number one point of galvanometer is it is a current detection device, and it can also be used to measure current and also measure voltage. वो कैसे किस तरीके से वो आप आगे सीखोगे. अब के लिए current detection and measurement meaning it can also find कि current जा रहा है या नहीं, दूसरा कितना जा रहा है. So both the things can be found out by the galvanometer, that is one of your electronic measuring devices. ठीक है. So from the battery let us say current I is flowing, main current I is flowing. ठीक है. तो once I is flowing, after the whole setup it has to again flow back as I itself, that is understood. ठीक है. I is flowing. Now once it reaches point A, it gets divided into two paths. The first path let us say I1, second path let us say I2. ठीक है. A to B जो जा रहा है वो I1 है, A to D जो आ रहा है वो I2 है. ठीक है. Then once I1 is flowing like this, at point B again it is divided into two things. Let us say this branch, I'll call it as IG. I hope it is being seen. I'll call this as IG. For better reference you can also refer your Legends book. I'm redrawing the same figure. So IG is the current flowing through the galvanometer. Galvanometer G का G से represent होता है, तो current through galvanometer I'll write it as IG. ठीक है. तो I1 is being supplied as IG and बाकी करंट BC को जाएगा. तो यहाँ पर भी कुछ करंट फ्लो हो रहा है. वो कितना फ्लो हो रहा है? लेट अस से इट इज I3. ठीक है. लेट अस से इट इज I3. ओके, क्लियरली विजिबल. तो I1 is here, I2 is here. As I1 is going here at point B, it is splitting into IG. Once IG, a part of current is flowing through galvanometer, let us say it is IG, remaining current will flow through Q, that is I3. To be honest, I3 क्या होगा ये मैं आगे फिर से समझाऊंगा. I3 कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू I1 माइनस IG, बिकॉज I1 ऐसे जाता था. ठीक है. फिर सडनली दो ब्रांच हो गए, एक है IG, तो जाहिर सी बात है ये ब्रांच में क्या करंट आएगा? इस ब्रांच में करंट आएगा I1 माइनस IG, दैट इज़ व्हाट इज़ I3. ये फिर मैं आपको फिर से समझाऊंगा. ठीक है. तो अभी के लिए ये I3 बोल देते हैं. अब यहाँ पर I2 ऐसे फ्लो हो रहा है इस पॉइंट तक, IG ऐसे फ्लो हो रहा है. इस पॉइंट पे I2 एंड IG आर मीटिंग ईच अदर, बेसिकली दे आर एडिंग, सो टुगेदर दे विल फ्लो हियर. सो इट इज, लेट अस कॉल इट I4. ठीक है. फ्रॉम D to S लेट अस कॉल इट I4. टू बी ऑनेस्ट I4 इज नथिंग बट I2 प्लस IG. तो उसके बाद I3 I4 जाकर C पर मिलेंगे, वापस I बनकर बैटरी को चले जाएंगे. सो दिस इज द पाथ ऑफ द current. I hope you have understood. Simple logic. Main I is the main current. At A, splitting into two things, I1 and I2. Then at B, I1 is splitting into IG, remaining is I3. At D, I2 is meeting, IG is meeting. I2 and IG together will meet and become I4. I4 is I2 plus IG. Later I'll write. Then at C, I3 and I4 are meeting. That will become main current I and go back to the battery. ठीक है. So this is your construction done. I hope it is clear. ठीक है. Now तो क्या explanation होगा initial? Consider a Wheatstone bridge consisting of 4 resistors P, Q, R, S connected across nodes A, B, C, D as shown in the figure. Connect a battery with main current I between A and C, and also connect a galvanometer between the nodes B and D. Let I be the main current, I1, I2, I3, I4 be the branch currents, and IG be the current through the galvanometer. I hope ये explanation clear रहा. Legends में उसने क्या कर दिया? In the circuit diagram I1, I2, I3, P, Q, R, S, G, I, G, E वैसे नाम लिख के उसका मेंशन कर दिया. उस तरीके से डेरिवेशन नहीं लिखा जाता. एक चीज़ याद रख लें फिर से, आपके लेजेंड्स के तमाम डेरिवेशन का शुरू का एक्सप्लेनेशन सही नहीं है एग्ज़ाम के हिसाब से. उसको हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए, इन द फॉर्म लाइक कंसिडर अ सर्क्यूट, कंसिडर अ ब्रिज, कंसिडर अ लेंस. उस तरीके से 3-4 लाइन में एक्सप्लेनेशन आना चाहिए. डायरेक्टली लेटर्स लिख कर लेटर्स को एक्सपैंड कर देने से उसको आप
यूँ नहीं कह सकते कि इट गिव्स अ डायरेक्ट इंप्रेशन दैट द स्टूडेंट हैज़ बाय हार्टेड फ्रॉम अ guide and he is simply copying it down, so it's a merely a negative impression which you will lose marks there. So just remember, कोई भी डेरिवेशन हो स्टेटमेंट फॉर्म में शुरू के 4 लाइन होने चाहिए एक्सप्लेनेशन. नाउ वो एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया. नेक्स्ट लेट मी अप्लाई. ओके, बैटरी लो, या स्टिल फोकसिंग. सबसे पहले वो एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख लोगे, मैंने डिक्टेट कर दिया है, ठीक है. नाउ अप्लाई KCL at, अप्लाई KCL at कहाँ पे, B. अप्लाई KCL at B, ठीक है. इफ आई अप्लाई KCL at B, what will I get at B? Current entering is I1, current leaving is IG and I3. current leaving is IG and I3, ठीक है. तो इसमें से क्लियरली I3 विल बी I1 माइनस IG, ठीक है. आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया. I3 इज I1 माइनस IG, वैसे आता है. नेक्स्ट अप्लाई KCL at पॉइंट D, नोट D. तो फिर at नोट D I2 is entering, IG is entering, I4 is leaving. Entering is I2 plus IG, leaving is I4, ठीक है. तो I3 एंड I4 डायरेक्टली आपको मिल गए कि वो क्या हैं इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द करंट्स. सो आई जस्ट चेंज. या सो I4 I2 plus IG, I2 plus IG equals I4. Now it's clear. Next तो I3 और I4 आपको मिल गया कि I3 क्या है, I4 क्या है इन टर्म्स ऑफ I1 और IG. तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया. ये इसलिए किया मैंने क्योंकि मुझे चाहिए कि दो करंट्स में पूरा काम हो जाए, I1 और I2 में. I3 I4 नए से करंट्स को नाम देना, उसके वजह से मेरे इक्वेशंस और कॉम्प्लिकेट होंगे. इसीलिए I3 I have written it in terms of I1 and IG. I4 I have written it in terms of I2 and IG. तो तमाम चीज़ें I2 I1 IG के नाम पे हो गए, ठीक है. एक और KCL भी अप्लाई कर सकते हैं इससे पहले. at A अप्लाई करोगे तो आएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. लेकिन ये वाला इक्वेशन आपके डेरिवेशन में ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं. आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ब्रिड्ज डालने के बाद KCL अप्लाई करो 2 बार एट पॉइंट B एंड पॉइंट D, ऊपर और नीचे, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं. अप्लाइंग KVL. अप्लाइंग KVL. अप्लाई KVL टू द लूप. लूप को अप्लाई होता है KVL. कौन से लूप को लेंगे? ABDA, 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 ठीक है. तो इसे एक अज्यूम डायरेक्शन होना चाहिए. तो ये हुआ हमारा अज्यूम डायरेक्शन, ठीक है. वी आर टेकिंग इट दैट वे. तो अब फॉलो करो क्लियर से. ABDA में पूरे के पूरे IR प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस ही है, वोल्टेज कुछ नहीं है. तो वोल्टेज क्या होगा? 0. कोई वोल्टेज यानी एनर्जी सोर्स नहीं है, यानी बैटरी या सेल कोई भी नहीं है उस लूप में, इसलिए इक्वल टू 0. अब लेफ्ट साइड में I1P है, ठीक है, GIG है और I2R है. I1P है, GIG है और I2R है. I1P is going in the direction assumed, so it is plus. GIG is also going in the direction assumed, clockwise direction में ही जा रहा है, करंट clockwise ही जा रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस. माइनस I2R आएगा क्योंकि I2 इस तरीके से जा रहा है, करंट हमने इस तरीके से लिया है. देखो करंट हमने यूँ लिया है डायरेक्शन हमारा लूप का, और जब ये नीचे जा रहा है इस तरीके से, तो फिर I2R नीचे तरफ जा रहा है, तो माइनस I2R. I1P प्लस GIG माइनस I2R इज इक्वल टू 0, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. I1P गोइंग इन द डायरेक्शन अज्यूम्ड, GIG गोइंग इन द डायरेक्शन अज्यूम्ड, I2R गोइंग इन द ऑपोजिट वे, सो माइनस I2R इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो वोल्टेज देयर,
ठीक है, वोल्टेज सोर्स कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। नेक्स्ट अप्लाई KVL टू द लूप, दूसरा लूप ले लेते हैं BCDB के लिए भी इसी डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। BCDB, अब क्या होगा BCDB, तो इस तरीके से जाना है क्लॉकवाइज। तो वहाँ पर भी कोई भी पोटेंशियल सोर्स यानी एनर्जी सोर्स नहीं है, सेल नहीं है, तो ज़ीरो है पोटेंशियल V लेफ्ट हैंड साइड। तो I3Q डायरेक्शन में जा रहा है, I3Q प्लस होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। I3 ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज हमने अज्यूम किया है, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से सही है। नेक्स्ट I4S है, I4S वो नेगेटिव होगा क्योंकि I4S यूँ जा रहा है और हमारा अज्यूम डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो उल्टा है, I4 ऐसे जा रहा है, हमारा डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो -I4S माइनस GIG, क्योंकि GIG नीचे जा रहा है, हमारा अज्यूम डायरेक्शन ऊपर को है, ठीक है। तो यहाँ पर एक समझ में आ रहा है, ऊपर के लूप में, पहले वाले लूप में +GIG था, दूसरे वाले लूप में -GIG। डायरेक्शन सही से समझ लें आप लोग। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, डन। नेक्स्ट अब एक कंडीशन जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया व्हीटस्टोन से, वो ये था, ये कंडीशन आपको यहाँ तक आने के बाद डेरिवेशन में अब तक क्या हुआ है, 2 बार KCL अप्लाई किया B एंड D पे, 2 बार KVL अप्लाई किया पहले लूप और दूसरे लूप पे, उसके बाद चारों इक्वेशन मिल गए। नाउ द बैलेंसिंग condition for Wheatstone bridge, the balancing condition for Wheatstone bridge is IG is equal to 0. The balancing condition for Wheatstone bridge is IG is equal to 0, यानी ये सेटअप जो है इसको हम बैलेंस्ड कहेंगे जब करंट गैल्वेनोमीटर में 0 पास होगा, ठीक है। तो ये उसका कंडीशन है व्हीटस्टोन का कि ऐसा सेटअप जो है, उसने अपने आप एक सेटअप बनाया, फिर उसमें उसने कहा कि सेंटर में जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है 2 नोड्स के बीच में, उसमें अगर करंट 0 है तो फिर समझो ये ब्रिज बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड का मतलब क्या है, उसी को हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखना है इस व्हीटस्टोन ब्रिज में, द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज इज करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, दैट इज IG इक्वल 0। स्टेटमेंट में लिख लेते हो और भी अच्छी बात है, is the current through the galvanometer is 0, that is IG equals 0। तो ऐसे लिख लो, इससे बेहतर है कि स्टेटमेंट में लिख लो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। आई होप दिस इज क्लियर। तो सब्स्टिट्यूटिंग द बैलेंसिंग कंडीशन, इसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग द बैलेंसिंग कंडीशन इन इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन 3 and 4, ठीक है। तो अब क्या होगा इक्वेशन 3 को क्या होगा, सबसे पहले इक्वेशन 3 क्या बनेगा, I1P ऐसे जैसा था वैसा रहेगा, प्लस GIG होगा 0, माइनस I2R होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बीच वाला टर्म GIG 0 हो जाएगा क्योंकि IG 0 है, तो इससे बनेगा I1P इज इक्वल टू I2R, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 5, I1P इज इक्वल टू I2R। और थोड़ा मूव कर लेते हैं ऑल राइट, इक्वेशन नंबर 4 क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4 क्या है, I3Q माइनस I4S माइनस GIG 0 है इज इक्वल टू 0 होगा, GIG 0 है, तो I3Q इज इक्वल टू I4S, ठीक है। I3Q इज इक्वल टू I4S। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, I3 क्या है, I1 माइनस IG टाइम्स Q, I4 क्या है, I2 प्लस IG टाइम्स S, ठीक है। तो IG क्या है, सिंस IG इज 0, you get I1Q इज इक्वल टू I2S,
तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6, I1Q इज इक्वल टू I2S। फिर से रिपीट करता हूँ क्या किया, I3Q इक्वल्स I4S बन गया, यहाँ पे GIG 0 हो गया, I4S उधर तरफ चला गया, लिख लिया। I3 और I4 इक्वेशन 1 और 2 से क्या है, I3 इज I1 माइनस IG, I4 इज I2 प्लस IG, उसको वापस डाल दिया, IG को वापस 0 बना दिया, तो I1Q इक्वल्स I2S। ठीक है, तो ये आपका हो गया काम। नेक्स्ट इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 6, व्हाट विल इट गिव? इक्वेशन 5 इज I1P, ठीक है, इज इक्वल टू I2R। इक्वेशन नंबर 6 इज I1Q and here it is I2S। I1 cancel, I2 cancel, P by Q is equal to R by S। ठीक है, P by Q is equal to R by S। तो this is the condition for balance of a Wheatstone bridge। तो balancing condition of a Wheatstone bridge is current through the galvanometer IG equals 0। उसके वजह से क्या रिजल्ट आया, P by Q equals R by S। मतलब P Q R S 4 रजिस्टर हों और करंट इन द गैल्वेनोमीटर 0 हो, तो फिर P by Q इक्वल्स R by S वाली रेशियो इक्वल होगी, यानी P by Q विल बी इक्वल टू R by S। उसीलिए मैंने कहा R और S का ऑर्डर याद रख लो, अगर यहाँ पर S लिखा और यहाँ पर R तो आंसर में S by R आएगा, जो कि आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो P by Q इक्वल्स R by S सही है। एक बार फिर से इस डेरिवेशन को बोल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या क्या किया हमने। कंसिडर 4 resistors PQRS in the order and connected between ABCD nodes. Between A and C there is a battery connected, between B and D there is a galvanometer connected। ठीक है, अब अप्लाई पहला स्टेप, वो इन्फॉर्मेशन आप लिख लें या फिर रिवाइंड करके देख लें कि इंट्रोडक्टरी लाइन क्या बोली थी। नाउ अप्लाई KCL at B, अप्लाई KCL at D। at B it is I1 entering, IG I3 leaving, तो I1 इक्वल्स IG प्लस I3। ठीक है, उसको आप रीअरेंज करोगे I3 मिल जाएगा, वो एक इक्वेशन। KCL at D, I2 इज इक्वल टू IG प्लस I4 मिल गया। ठीक है, ये एक लिख लिया। उसके बाद KVL इन द फर्स्ट लूप ABDA, तो ये अज्यूम डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1P सपोर्ट करता है, GIG भी सेम है, तो I1P प्लस GIG एंड माइनस I2R बिकॉज माइनस I2 इज गोइंग डाउनवर्ड्स, तो इज इक्वल टू 0 बिकॉज देर इज नो वोल्टेज इन बिटवीन। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, सॉरी हियर। नेक्स्ट सेकंड, BCDB को KVL अप्लाई किया, तो वहाँ पर आ रहा है I3Q माइनस I4S माइनस GIG, उसको भी लिख लिया। उसके बाद बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिजेस, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, दैट इज IG इक्वल 0, उसको लिख लिया। नाउ इक्वेशन 3 एंड 4 क्या होंगे, इक्वेशन 3 बनेगा IG 0 हो गया, तो GIG 0 हो गया, I1P माइनस I2R इक्वल 0, माइनस I2R उधर तरफ, I1P इक्वल्स I2R, I1P इक्वल्स I2R। फिर सेकेंड केस में I3Q माइनस I4S माइनस 0 हो जाएगा इक्वल 0, तो माइनस I4S उधर जाएगा, I3Q इक्वल्स I4S। I3 और I4 डायरेक्टली रेशियो भी निकाल के बाद में कर सकते हो, या फिर I3Q इक्वल्स I4S में I3 और I4 क्या है, I3 यहाँ पर है, I4 यहाँ पर है, सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 एंड 2, IG को 0 बनाओ, तो फिर बचेगा क्या, I1Q इक्वल्स I2S। उसके बाद ये वाला और इक्वेशन 5 दोनों का रेशियो निकालो, P by Q इक्वल्स R by S मिल जाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आपके एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि व्हाट इज़ द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर अ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक बैलेंसिंग कंडीशन है, इसके ज़रिए से एक और कंडीशन मिला है, रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो इसीलिए आप ये करोगे कि जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क के लिए, आपको हमेशा जो है करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, IG इक्वल 0 भी लिखना है और P by Q इक्वल्स R by S भी लिखना है। दोनों लिख लोगे तो सेफ रहोगे। ठीक है, कोई एक लिखोगे तो परेशानी हो सकती है। सो दैट्स वाई आई होप दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन इज क्लियर। प्रैक्टिस दिस आई वुड से एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स। ठीक है, विदाउट सीइंग, विदाउट राइटिंग, यू शुड बी इन अ स्टेट टू टेल दिस होल डेरिवेशन वर्बली विदाउट सीइंग, यानी उस लेवल को आपको बाय हार्ट नहीं समझ के सीख लेना चाहिए कि बिना देखे आप विजुअलाइज करके ही पूरा डेरिवेशन बोल सकें। अगर आप वो कर सकते हो तो समझ लो कि 5 मार्क पक्के हो गए आपको इस चैप्टर से। और फिर इसी के ऊपर 2 और एप्लीकेशंस हैं, और इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स भी कभी कभार इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव में इसके ऊपर अच्छे अच्छे सवालात बनते हैं। सो माय सजेशन, प्लीज़ प्रैक्टिस दिस रियली वेल so that it will be easier in the exam.
Thank you.